Right. Now let's begin. One may ask, we are at page number 159. यहाँ से करेंगे. One may ask, is crowding always experienced in high density settings? And do all people experience its negative effect? ये अपने आप में question है, इसके आगे question लिख दो. If you answer both questions by saying no, you're right. When you go to a fair, means एक मेला देखा है कभी, शादी, wedding ceremony, usually the physical settings has high density and we enjoy it in that form. Wedding अगर खाली खाली से हो मज़ा ही नहीं आता यार. So it means we enjoy this in that density, right? After all, what is a mela or wedding ceremony? If there are very few people, मज़ा ही नहीं आया. On the other hand, if there are many people sharing a small room, everyone feels uncomfortable. So weddings are supposed to be crowded, right? The stressful effect of crowding can be completely understood only when we look into its consequences. A summary is given below of the effects of crowding. Underline लिख दीजिए, effects of crowding and high density. तो question क्या है? What are the effects of crowding and high density? तो बोला जी, it is reported in several researches studied in India in like this. फिर नीचे आपने उसको दे देना है आंसर को. नंबर 1 क्वेश्चन पता चल गया जी. इफेक्ट्स ऑफ क्राउडिंग है तो आप नंबर 1 अंडरलाइन करो. एबनॉर्मल बिहेवियर लिखा ना हेडिंग. क्राउडिंग एंड हाई डेंसिटी मे लीड टू, आप हेडिंग बना दो एबनॉर्मल बिहेवियर एंड एग्रेशन. फिर स्टार्ट करो कि इट मे लीड टू एबनॉर्मल बिहेवियर एंड एग्रेशन. दिस वॉज शोन मैनी ईयर्स अगो इन अ स्टडी ऑफ रैट. एग्जाम्पल के साथ समझाइए. फॉर एग्जाम्पल, these animals were placed in an enclosure, initially in small numbers. As their population increased within this enclosed space, they started showing aggression. Aggressive and unusual behavior, such as biting the tails of the other rats. पहले ठीक रह रहे थे, जैसे उनके numbers बढ़ गए आपस में लड़ने लग गए. This aggressive behavior increased to such an extent that ultimately the animal died in large numbers, thus decreasing the population in the enclosure. Among human beings also, underline, an increase in population has sometimes been found to be accompanied by an increase in violent crimes. So, क्योंकि हमारे यहाँ resources same है राजे, but number of people are increasing, तो accumulate करने के लिए मेरे पास ज़्यादा हो, इस दौड़ के लिए लोग एक दूसरे को मारने ही लगे. Violent activities बढ़ जाती हैं क्योंकि this research happened on rats and rats also showed the same behavior. So this is how we can understand that density का effect होता है. Did you understand that? Second heading बनाइए, lowered performance on difficult tasks. ये heading हो गया आपका. अब देखते हैं क्या लिखा है. Crowding leads to lowered performance on difficult tasks that involves, जहाँ दिमागी काम होगा वहाँ आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी. कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड हैज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन मेमोरी एंड इमोशनल स्टेट. ओके, इसको हेडिंग आप ये भी बता सकते हो, एडवर्स इफेक्ट ऑन मेमोरी एंड इमोशनल स्टेट. सो एनीवेज यू कैन डू दैट. these negative effects, we are moving to page number 160. Yes, these negative effects are seen to a smaller extent in people who are used to crowded surroundings. नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा? हमारी परफॉर्मेंस. हमारे घर में ही देख लो आप, जॉइंट फैमिली सिस्टम में जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं. आई नो मैनी फैमिलीज वेयर देयर आर 40 और 60 पीपल लिव इन अ हाउस. क्या उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होता होगा? येस, इट इफेक्ट्स. क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं. यू हैव टू पे अटेंशन टू एवरीवन, यू हैव टू अटेंड एवरीवन, यू हैव टू गिव ग्रीट एवरीवन. यू कैन नॉट डू ऑल द टाइम. सो आपको अपनी एकेडमिक्स के लिए यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़. जॉइंट फैमिली में बच्चों को डिप्रेशन कभी नहीं होता बिकॉज यू हैव मैनी पीपल टू टॉक विद. नहीं तो आप बात करने के लिए तरस जाते हैं, यहाँ नहीं होता. लेकिन हाँ, आपके परफॉर्मेंसेस पे इफेक्ट आता है. दे ऑल्सो शो, यहाँ आ गए जी हम, they also show a weaker tendency to continue working on a task if they are unsuccessful at it compared to children growing up in a non-crowded households. They experience greater conflicts with their parents and get less support from their family members. Next one, nature of social interaction determines the degree to which an individual will react to crowding. अब अंडरलाइन इसका आप इतना रखिए, नेचर ऑफ सोशल इंटरेक्शन.
एक्चुअली उससे पता चलेगा कि आपका रिएक्शन कितनी डिग्री का होगा. एग्जाम्पल समझो आप, फिर समझ में आएगा. इफ द इंटरेक्शन इज ऑन अ हैप्पी सोशल ओकेजन, जैसे कि कोई पार्टी है, कोई पब्लिक सेलिब्रेशन है, कोई फेस्टिवल है, मे बी द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन इन द सेम फिजिकल सेटिंग में कॉज नो स्ट्रेस एट ऑल. अब दिवाली है, पीपल विल कम टू योर प्लेस एंड यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड. दिस विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. रादर इट मे लीड टू पॉजिटिव इमोशनल रिएक्शन. आप तो उनके साथ बॉन्ड बढ़ा रहे हो. एट द सेम टाइम क्राउडिंग इन टर्न ऑल्सो इन्फ्लुएंस द नेचर ऑफ, मतलब आप किस तरह के सोशल इंटरेक्शन की बात कर रहे हो. इफ इट्स अ वेडिंग और अ पार्टी, यू एंजॉय क्राउडिंग, सो दैट टाइम इट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द सोशल इंटरेक्शन. करेक्ट. नेक्स्ट हेडिंग आ गया, इंडिविजुअल डिफर इन द डिग्री टू विच दे शो नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ क्राउडिंग. अब इंडिविजुअल्स भी डिफरेंट वे से रिएक्ट करते हैं. एंड ऑल्सो इन द नेचर ऑफ दिस रिएक्शन. टू काइंड्स ऑफ टॉलरेंस कैन बी मैंशनड. इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए साइड में, यहाँ से मार्क कर लीजिए. टू काइंड्स ऑफ टॉलरेंस कैन बी मैंशनड. कौन कौन सा? एंड दैट मे एक्सप्लेन दीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस. क्या क्या? क्राउडिंग टॉलरेंस, कॉम्पिटिशन टॉलरेंस. ये दो तरह का टॉलरेंस की बात कर रहे हैं. नंबर 1 क्राउडिंग, मीनिंग अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दो. इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू मेंटली डील विद अ हाई डेंसिटी और क्राउडेड एनवायरनमेंट. आप मेंटली उनसे कैसे डील करते हैं. such as crowded residence, a large number of persons within a small room. अब आप अगर तो used to है बचपन से, फिर तो आपको शायद मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं. People who are used to an environment containing many persons around them, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती बेटा. For example, individuals growing up in large families that lives in a small house develop more crowding tolerance than people who are used to only a few persons around them. न्यूक्लियर फैमिली वालों के घर में गेस्ट आ जाएं तो मुश्किल हो जाएगी. आवर कंट्री हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन एंड मेनी पीपल लिव विद लार्ज फैमिलीज इन स्मॉल हाउसेस. इंडिया में अडॉप्टेशन फिर भी बेटर है, वेस्टर्न में नहीं. वहाँ 1 से 2 बंदे आ जाए, वो पूछने लगते हैं व्हेन आर यू गोइंग टू गो. दिस माइट लीड अस टू एक्सपेक्ट दैट इंडियंस इन जनरल, हम टॉप पर आ गए, शुड हैव मोर क्राउडिंग टॉलरेंस दैन पीपल from other less populated countries. यहाँ गया. Competition tolerance क्या है? It is the ability to put up with a situation in which individual would have to compete with many others for even basic resources, जिसमें कि physical space भी है. अब आपको अपने resource क्योंकि कम है, लोग ज़्यादा हैं. Since there is a greater possibility of competition for resources in a crowded setting, the reaction to that setting would be influenced by the extent of tolerance for कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज. मतलब डिपेंड करेगा कि आपका कंपटीशन कितना रिसोर्स को एक्यूमुलेट करने का है, आपकी कैपेसिटी कैसी है. इसको बोलते हैं कंपटीशन टॉलरेंस. कंपटीशन क्या है? रिसोर्स के लिए, इवन फिजिकल स्पेस के लिए जो झगड़ा है. तो अगर तो आपकी पॉसिबिलिटी उस कंपटीशन रिसोर्सेज को की सेटिंग में ही आपका सारा सिस्टम हुआ है या आपने हैंडल पहले कर चुके हैं, तो आई थिंक आपको फिर इस तरह का कोई कंपटीशन टॉलरेंस आपका हाई रहेगा देन दोज हु हैव नेवर डन इट बिफोर. अंडरस्टूड? राइट. तो ये आ गया आपका कंपटीशन टॉलरेंस. नेक्स्ट पॉइंट वी विल रिकॉर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम दिस पॉइंट, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स. राइट. सो कीप वॉचिंग.